Vampire over here, looking very good at the last game. Unfortunately, we weren't able to take it all the way as DRS bombarded them with a grenade airstrike from the side, smoked them out. They have no idea what was hitting them, but we are headed into our second match of the day on Miramar. Plane path from Los Higos all the way up to Torre Ahumada in the northeast side. A fairly even cut on the plane path. Should be fairly kind to everyone involved. You'll be looking at who's going to be dropping out towards places like Picado, like Los Leones, or Pozzo as well. A crucial area. Montenuevo potential to get a little bit hot on this plane path as well. Yeah, potential for Montenuevo to get a little bit spicy. The team's able to quickly head up towards that northwest side and get themselves in position. Picado, obviously one of those really well-liked positions around the map. Maybe someone's going to pick up that soon. Torre Ahumada, also easy enough to head towards another Copadilla, another position around the map that does provide you a lot of options towards that late game. So it's a surprisingly good play path here for a lot of teams in this lobby. We'll just see who's able to pick up those priority spots early. Halfway on the plane path now. Alter Ego, DRS close to one another on the south coast. Over in Picado, it looks like it's going to be Wolves on their own right now. Los Leones potentially shared between Vampire and T2K, but T2K are a little bit further north and might not even challenge for it. Instead, they've got their own problems to worry about over there. There's two teams dropping near them. The outpost from Nova all the way down towards that south side. Circle pops. It's over towards Impala. Yeah, Impala open now. Not many teams actually headed over this way, in fact, so you should see some players, some teams heading on towards Puerto Paraíso, even Impala. Delta's taking the Delta Expressway over towards that position of the map on the old glider. Good news for them. Won't get isolated. Bit more difficult to actually take players out in this thing, considering how fast it can be. Not very evasive though, unfortunately. Most time when I try and pull out evasive maneuvers, I tend to just smash right into trees. That is one of the main dangers, I think, of flying. Yeah. When there are trees nearby. Or even, you know, pylons in the background hitting those cables. Smash. Bad times. That's right. Okay. I feel like you're trying to tell me something and I'm not getting it, but I don't know what's going on there. No, it's just quite funny, because John is dressed for the weather right now. He's got a nice jacket on. He's good to go. He looks cozy. He looks warm. Oh, so cozy. I'm currently borrowing a sweater. Got the hood up. I'm sat down. I'm all huddled in my chair, and it kind of looks weird. It kind of looks like someone's the professional and I'm not. However, whoa, I can bring professional commentary. Yeah. That nice hate. Oh, you know, it's just taking over my brain. Look, you're just gonna get jealous if you think too much about it. I really am. But again, IHC on the western side in Montenuevo. No one really challenged them out on this western edge. They can move in fairly soon. Absolutely. And again, this is what I'm saying about, you know, not judging a book by its cover, or me with my silly sweater on. But it's just teams like DRS or Inco where you think to yourself, you know, maybe you're looking at this team a little bit wrong. Like, I used to think Inco was a lot of luck. I think that they're fully aware that they don't have that power to go against some of these teams in the lobby that are right towards the top, and there are a lot of them, and I respect that about them, because they just set themselves in positions where they can take those third parties, they can take those off angles, and that's fair enough. That's fair play. I like that from Inco. They're doing what they can to see themselves up towards a top position here at the Pmgc Grand Finals. No matter what happens, I think if Inco can keep up this kind of pace, they're going to bring home some good money for the team. Influence Kemen north side of El Azahar. Wolves left Picado very swiftly, I would say. We're not too far into this game, Blank, and they've already left and headed all the way out to the east towards La Bandita, near towards where Nova have actually made their move. So two of the Chinese teams will be playing there. Hang on a minute, there's a third as well, because Nova are in the midst of it also, near the crater, near Minas Generalis. Just a little bit further north. Inco crunching in from that north side. We'll see if they have got that power. Inco, obviously, this is what I'm saying. I don't think they have that power just yet. But I think what they do have is they have good game sense. They have good awareness. I think they do their homework. They go home and they study. They keep the little nightlight on. And that's fine. I respect that. I like that a lot. It's something I admire in a team. I think if you just come into these matches and you just have sheer brute force, doesn't
always come through if you don't have, you know, the brains to back up that brawl a lot of times. I think right now Inco is kind of consists a lot of brains. They're a strong brain though. Very strong brain. Big strong brain. Yeah, a muscular brain. They've been eating their greens. Yeah. S2G on the western side as well, just a little bit behind the queue for Wolves. And they'll draw a little bit shorter, but they're still firmly in this circle for the next. But they went over towards Impala on the east edge and looking to create an outpost a little bit further into the mix of it all, a little bit out to that western side of their position. They'll be happy to do that, happy to be able to gain that foothold. 4 Angry Men on the southwest side. Chington was able to get very, very deep into that last game. 4th place, in fact, for them as a solo player. So a good foothold on the tables will have been achieved there. 9 points total, which on the game that they were having, a really, really good result. It's not bad. I think he was hoping for a top 3. And it was quite quickly that a lot of these other teams went out after them. But again, 9 points. Yeah, it might not be that average you're looking for like maybe that 10, 11 plus, but what this does see them is in a range where this game, they hit just a little bit higher, maybe a few more eliminations, get a decent position over towards that. They'll be making good pace in this lobby. VPE currently right on target with 10 points on their last game. I would like to see something a little bit more explosive from VPE. Obviously, taking the title in PMWI, they took both the titles, in fact. That was over in the main tournament as well as the after party. They were absolutely smashing the competition. It was a global competition as well, but this wasn't the type of teams you maybe see at PMGC. It was some of the best teams around the world, and honestly, then we cut down to these leanest and meanest for PMGC 2022 Grand Finals. I do think VPE could take home the grand title, and it would be an incredible result for Thailand overall, and a massive meteoric rise there for Vampire Esports, a relatively unknown team. Having 2 Thailand teams as well coming in from the region, Vampire and Buriram, is already a great result for the region. Blank. They've already managed to put up a phenomenal performance over the 2022 season, so we're looking for more coming out of that side of the world. In the SEA area, of course, with the updated PMPL formats, with the shifts coming through, there's all more opportunities for teams to try and take them on in that region as well. 4 Angry Men looking to take on a team of their own, the home team, Alter Egos. But no one really going down too low, no one really taking too much damage, just presence being demonstrated and felt. Yeah, territory usually very important here on Miramar. I think that you can kind of claim a lot of territory quite quickly. Specifically because there is so much elevation on this side of the map as well towards El Azahar. You can control a full kilometer around you. And in fact, you know, you are seeing a team like Influence Kemen doing that right now from the southeast of Junkyard. A7 tend to take very similar rotations to Influence Kemen, though a lot of times it has been Influence Kemen winning out on that side. With this circle though, it's just quite cruel. I think Alpha 7 had figured out a path past Influence Kemen, but now they have to pass them if they want to get in towards the circle. So I think maybe this is a rotate in together. I don't think Alpha 7 wants to get too far behind this movement. Alpha 7 in the last game, 5th place, 7 eliminations. We talked about that being a great start for them. 13 points will be their current line-up there. They kind of remind me of like a combo point team, because, you know, as they start to build up those combo points and they keep hitting their target, they keep striking different areas, you know, you start to see them like really blast out. And that's when you'll see the momentum carry them throughout the rest of the game towards that very, very end game where they just look absolutely phenomenal. I think if you see Alpha 7 start to strike out too early though, or a little bit too late, and then they stumble, they falter, that's when the engine starts to, you know, get caught up a little bit, starts to choke and gurgle. And I think Alpha 7 needs to really avoid those type of situations and maybe come to a dead stop, reevaluate, and then go again from step 1. Fuel not quite mixing there properly for the Inco engine, and King spots a shot onto Squash. Sails it on down. Wolves, S2G taking a little bit of scrap at their own. The Wolves try and crash on in, but S2G, they played well in the last game. They're going to continue to do so here. Memory burned away as well. 2 points found for Kelsey. Yeah, there's a lot of confidence coming through for S2G from the global stage, right? There was a lot of people predicting them to be in the top 3. And I think right now they're proving why they should be up towards that position at the moment with 15 points, 2 eliminations found. Inco,
I think this is kind of typical of what we expected to see. Eventually, they were going to head central. Fortunately, Nova is just too quick with this rotation. They're comfortable with making it as well. If anyone gets too close, they're going to quickly take shots down towards them. Now, Inco's suffering because there are more teams willing to play center and very quickly. Will be a little bit trickier for them. However, in the first game, 10 eliminations, second place, you won't be unhappy with it. See if that can continue against Nova's position. You were talking about them being close to one another. Pick feet knocked, beautiful, yet to get that res, and with the health bar as it is, unlikely that he's going to be able to make that dash unless you do it right now. Beautiful will be playing solo from here on out into the game. Moves forwards to the building. His teammate falls. गया और इस मैच के अंदर भी दो प्लेयर्स एस्ट्रोजी के हाथों, एक प्लेयर नोवा के हाथों लूज करती हुई वुल्व्स डाउन टू देयर फाइनल प्लेयर, लेकिन मीका को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ इनको के लिल बॉय की तरफ से मीका यहाँ पर नॉक हो जाएंगे। लिल बॉय ऑन द अदर साइड, स्नाइपीज के ऊपर अब उनकी नजरें रहने वाली हैं। उन्होंने स्मोक के ऊपर मार्क भी किया यहाँ पर अपने प्लेयर्स के लिए कि पॉसिबली यहाँ पर एक और प्लेयर हो सकता है, लेकिन माइका अनफॉर्चुनेटली फेडरल भी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। टॉस्की भी अपर साइड से गेट जो है वो इस सारी सिचुएशन को गार्ड कर रहे हैं। आई वुड से कि स्नाइपीज के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाए, लेकिन ब्यूटीफुल के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई इस लाबंदीता के क्रैश साइट के ऊपर जो है वो वुल्फ अकेले मौजूद है। 4am के प्लेयर्स उनके ऊपर पुश करते हुए, लेकिन नेट जाता है, चिप डैमेज यहाँ पर पड़ता हुआ 4am के प्लेयर को, बिल्कुल लो ऑन एचपी करता हुआ WWX को। एंड अगेन एक जो है वो एक और यहाँ पर ट्रेड जा सकती है नेट के जरिए, लेकिन स्नाइपीज के ऊपर पुश जाता हुआ स्नाइपीज को भी टेक डाउन किया जा चुका है। एंड डैम रूड इज द फाइनल वन। एंड टीम गीक फार्म अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर अपने 3 प्लेयर्स लूज कर जाएगी। डैम रूड रिट्रीट कर रहे हैं, सर्वाइव करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाए, लेकिन ऑन द अदर साइड ब्यूटीफुल को टेक डाउन किया जा चुका है। 4am के बैकपैक में वो किल जाएगा एंड टीम वुल्व्स इज आउट ऑफ दिस गेम। एक टीम, पहली टीम इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। मिरामार का ये स्टेज मुश्किलात खड़ी करता हुआ कुछ टीम्स के लिए, स्पेशली अगर बात की जाए टीम गीक फार्म और वुल्व्स के लिए। बिल्कुल जी। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इन एलिमिनेटिंग वो टीम्स की जो एलिमिनेट हो चुकी हैं, और इनकी तरफ से एक ही गलती दोहराई जाती है अनफॉर्चुनेटली, और उस गलती की जो पनिशमेंट इनको बहुत टाइम पर मिलती हुई नज़र आती है। और खैर अभी PMGC के ग्रैंड फाइनल्स का आगाज़ है, और वैसे तो गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं होती इतने बड़े स्टेज पर, बट अभी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, और आपको ये सोच कर हिम्मत नहीं हारनी कि यू गाइस आर डन। अभी 16 मैचेस बाकी हैं, राइट? अभी 16 मैचेस बाकी हैं, और 16 मैचेस में बहुत कुछ हो सकता है। एंड वी नो दैट गीक फैम एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल टीम है, कम बैक इनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल FF वर्सेस BRU दोनों टीम्स काफ़ी करीब रहेंगी, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में ही गाड़ियाँ दौड़ाती हुई टीम्स नजर आती हैं, क्योंकि फ़ाइट्स नहीं लेना चाहती। इस वक्त तमाम टीम्स की जो पहली कोशिश है हसन, वो यही है कि फ़ाइट्स को अवॉइड करना। दूसरी कोशिश उनकी होती है कि अगर फ़ाइट अवॉइड नहीं हो रही तो फिर चलें, अब आ ही गए हैं फ़ाइट में, तो लेट्स गो फॉर दो स्किल्स। इससे मरने से बेहतर है कि सामने वाले के कुछ प्लेयर्स लेकर ही जाएं। लेकिन फ़िलहाल FF मुझे लग रहा है कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, बिकॉज सामने 4M के प्लेयर्स जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, FF के ऊपर एक बहुत बुरी सिचुएशन बनने वाली। लेकिन 4M हैड नो आइडिया, फिर भी FF कैपिटलाइज नहीं कर पाती। 4am के क्विंचन यहाँ एक नॉक निकालते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन अभी तक इस फाइट में समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। गुड यहाँ पर सोल की कत्ल कंफर्म करते हैं, लूट्स भी कंफर्म हो जाएंगे। 4M चारों पर जिंदा रहेंगे, बट बैक थर्ड पार्टी हो जाएगी। इज देयर थर्ड पार्टी कर जाएगी, एंड 4am ऑलमोस्ट अपना प्लेयर गवाते हुए नजर आ रही थी हमें। अनफॉर्चुनेटली इस सारी फाइट में FF के एक और प्लेयर भी डाउन हो जाएंगे, और अब FF को अपने एक आखिरी प्लेयर के साथ खेलना होगा। ऐसा यहाँ पर नॉक होती है, लेकिन किंग को बड़ा जबरदस्त किस्म का रिटेलिएशन का सामना करना पड़े। यहाँ पर नोवा का बाकी स्क्वाड बैकएंड के ऊपर मौजूद है। 7 को भी यहाँ पर अभी तक के लिए जो है वो रिवाइवल दे दिया जाएगा। 4am 4 मैन स्टैंडिंग हो जाएगी, 3 किल्स उनके बैकपैक में। पॉसिबली हो सकता है कि नोवा के इस प्लेयर को भी उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया जाए, लेकिन DRS ऑन द अदर साइड किल फीड के अंदर ऑल्टर ईगो के प्लेयर को टेक डाउन करती हुई बिल्कुल आंखों के सामने। ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स के DRS के किलर YT किल उठाते हुए, लेकिन बैकएंड के ऊपर DRS के डेल्टा को T2K की तरफ से रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। डैमेज दिया गया उनके ऊपर, एंड अनफॉर्चुनेट ही वाज, आई बिलीव यहाँ पर डैमेज जो है वो रिवाइव जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा
टीम डीआरएस के लिए, बट डीआरएस रिवाइव देगी अपने प्लेयर को एंड वापस से 4 मैन अप होती हुई नजर आ सकती है हमें। को प्लेयर पहुंच चुके हैं, उनके पास रिवाइव भी इनिशिएट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक के लिए जो गलतियां की गई स्पेशली फायरफ्लक्स की तरफ से, गीक फैम की तरफ से सेम पनिशमेंट मिली उनको भी जो कि हमें गीक फैम को इनको के हाथों सॉरी टीम इन्फ्लुएंस चाइमन के हाथों देती हुई नजर आई। 3 किल्स वहां पर टीम इन्फ्लुएंस चाइमन ने गीक फैम के ऊपर उठाए और इसी तरह से 4am भी 3 किल्स फायरफ्लक्स के ऊपर उठाती हुई नजर आ रही है। T2K वर्सेस डीआरएस पॉसिबली ये एज के ऊपर फाइट बन सकती है, दोनों टीम्स आमने सामने है, एक अच्छा कंपाउंड है, डीआरएस नोज के कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एजेस के ऊपर, बिकॉज आने वाली टीम्स स्पेशली अगर हम बात करें ऑल्टर ईगो की, वो भी करीब विसिनिटी से गुजर सकते हैं और ये कंपाउंड जो है एक अच्छी विजन दे रहा है सराउंडिंग की, ऑन द गो टीम्स को भी तंग कर सकते हैं यहाँ पर टीआरएस अगर इस कंपाउंड को लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन रूल्स ओजी पूरी तरह से सराउंड करते हुए एक लंबी रोटेशन उनकी वैम्पायर के साथ सामना हो सकता है, यहाँ पर डीआरएस के रूल्स ओजी डैमेज ले सकते हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। बैक एंड के ऊपर फायरफ्लक्स के सोलेस भी मौजूद हैं, लेकिन घेरा तंग करने की कोशिश T2K के ऊपर की जा रही है। एक काफी कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पर डील की जा रही है डीआरएस की तरफ से, एंड पनिश किया जाएगा T2K के किसी किस्म के ओवर एक्सटेंशन को। स्पेशली संदेश काफी एक वल्नरेबल पोजीशन के ऊपर मौजूद है, जहां से संदेश रूल्स ओजी या किलर वाइटी दोनों में से किसी एक के हाथों नॉक हो सकते हैं, लेकिन जेन के ऊपर नेट जाता हुआ, जेन लो ऑन एचपी ओपन के अंदर मौजूद है। डेल्टा यहाँ पर उनको स्पॉट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा टाइम डिले यहाँ पर आता हुआ नजर आया, लेकिन रूल्स ओजी को बैकएंड के ऊपर से ऑल्टर ईगो की तरफ से नॉक किया जा चुका है। जिस चीज का खदशा था, जिस चीज की परेशानी थी, वही होती हुई नजर आ रही है। डीआरएस अनफॉर्चुनेटली अपना एक प्लेयर यहाँ पर लूज कर जाएगी। बिल्कुल जी, डीआरएस इस सारी फाइट में अपना एक प्लेयर अभी के लिए लूज़ करती हुई नज़र तो आती है, लेकिन T2K और डीआरएस की फ़ाइट को देखकर जितना ज़्यादा शायकीन खुश हो रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा नेपाली फैंस परेशान हो रहे होंगे, बिकॉज दोनों ही टीम्स उनके रीजन की टीम्स हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ इस मुठभेड़ में अगर डैमेज खाती हैं तो एक एक प्लेयर का इस मैच से बाहर निकलना उनके दिलों पर जो वो बहुत बुरी तरह से लगेगा। लेकिन ऑल्टर ईगो, क्या वो एक गलती करना चाहते हैं? क्या जिस तरह से वो इस वक्त मूव कर रहे हैं, क्या वो एक मिस्टेक का बन सकती है उनके लिए? इस मैच से उनको एग्जिट दिला सकती है ये चीज़ या नहीं? लेकिन किल फीड में गीक फैम इस मैच से लॉबी चली जाती है। ऐसा एक और मैच गीक फैम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। लेकिन खैर सर्कल की बात करते हैं, जहाँ पर A7 इनको ब्रू और INF तीनों काफ़ी अच्छी एरिया पर तो मौजूद हैं, लेकिन इस एच से निकलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो चुका है। डीआरएस और T2 के दोनों ही टीम्स में से अगर कोई भी टीम निकलना चाहती है, फाइट लिए बगैर यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। सन बिल्कुल, आप देखें पूरा का पूरा वेस्टर्न साइड सर्कल का जो है वो पुर कर दिया जा चुका है टीम्स की तरफ से। नोवा बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, स्टालवर्ड स्पोर्ट्स को भी सर्कल के अंदर आने, बैक हैंड के ऊपर S2G का प्रेशर भी है, एंड वैम्पायर स्पोर्ट्स जो कि थोड़ी देर पहले हमें टीम AE के अगेंस्ट आती हुई नजर आई, वो भी अभी तक के लिए सर्कल में जाने की कोशिशों में रहने वाली। लेकिन बरीराम यूनाइटेड की टाइगर की तरफ से यहाँ पर अल्ट्रीगो के एक और प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। बैकएंड के ऊपर एलेक्स भी कंफर्म होते हुए INF के हाथों, INF के बैक में 5 एलिमिनेशंस आ चुकी है। सो अगेन ये चीज सादिक होती हुई कि जो साउथ अमेरिकन टीम्स हैं उनकी तरफ से मिरामार को अभी तक के लिए डोमिनेट किया जा रहा है। अल्फा 7 एक अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, किल्स उनको उस तरह से नहीं मिले, लेकिन पोजीशन उनके पास मौजूद है, एंड दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि अब उनको आने वाले स्टेजेस के अंदर किल्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। ऑन द रोटेशन प्लेयर्स को उठाना उनके लिए काफी आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ INF का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अभी स्काई हाई नजर आ रहा है। आप देखें काफी एक ओपन से जो है वो डिस्पर्शन के अंदर ये टीम नजर आ रही है। नॉर्दर साइड टीम S2G यहाँ पर स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के पिका को कंफर्म करती हुई नजर आएगी, एंड अगेन वही बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, टीम साउथ अमेरिकन टीम स्पेशली ब्राजीलियन टीम्स जो है वो काफी अच्छा खेल रही है इस मिरामार के ऊपर सो फार। आप देखें INF का स्क्वाड, दूसरी तरफ इनको का स्क्वाड वो भी सर्कल के अंदर मौजूद है, एंड अल्फा 7 तो हम देख भी रहे हैं कि काफी अच्छी जगह पे सर्कल के अंदर मौजूद है। सो 3 ब्राजीलियन स्क्वाड्स पहले ही सर्कल में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। लेकिन वेस्टर्न साइड पूरी तरह से अभी तक के लिए हर एक फाइट के अंदर हमें आती हुई नजर आने वाली है। 2 प्लेयर्स मौजूद हैं और प्लेयर स्पॉट होते हुए डेल्टा स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन डेल्टा अपनी पोजीशन चेंज करते हुए एंड पॉसिबली प्ले जोन के हाथों नॉक हो सकते हैं, लेकिन here you go, नॉक हो चुके हैं। डेल्टा नॉक, TRS इज डाउन टू देयर फाइनल प्लेयर किलर वाइटी जो कि पहले ही सर्कल में काफी डीप जा चुके हैं। एंड T2K के प्लेयर अब थोड़ा सा ज्यादा एहतियात से यहाँ पर एहतियात का दामन जो है वो अपने हाथों से छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे।
because they know कि बैकएंड के ऊपर कोई और प्लेयर भी हो सकता है, एंड T2K DRS थ्रेट से अभी तक के लिए अमान पा चुकी है लाल। जी हाँ, लेकिन इस वक्त के लिए हाइट का एडवांटेज उठाते हुए 4AM नजर आ रही है हमें, और उनकी तरफ से वैम्पायर स्पोर्ट्स के ऊपर किल्स कंफर्म किए जा रहे हैं। 4AM के प्लेयर स्वान को देखें, आपको खूबसूरती के साथ टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के 2 नॉक्स निकालते हुए नजर आते हैं हमें, और वैम्पायर स्पोर्ट्स के पास कोई भी मुकाबला करने के लिए कोई भी उनके पास कोई इस वक्त कोई हरबा नहीं बचा हुआ जो वो इस्तेमाल कर सकें, कोई भी चाल ऐसी नहीं जो वो चल सकें, और 4AM यहाँ पर किल्स मजीद अपने बैकपैक में लेकर जा रही है। लेकिन S2G यहाँ पर एक बैक स्टैप देने की कोशिश करेगी। गुजायो 4M से रियलाइज़ करते हैं कि उनको एक बैक स्टैप पड़ चुका है, वहाँ पर भी उनकी तरफ से नॉक निकाला जाता है। 4AM की खूबसूरती के साथ अपने डिफरेंट एरियाज को क्लियर करी है, ये काफ़ी चीज़ शानदार और काबिल तारीफ रहेगी ज़रूर। लेकिन S2G केल्सी जो कि एक बड़े अच्छे एरिया पर मौजूद थे, उनको भी नॉकडाउन किया जाता है, लेकिन वहीं पर 4AM के स्वान खुद भी डाउन हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक नॉक उनकी तरफ से निकाला जाता है। इस फाइट में 4AM 7 किल्स कंफर्म कर चुके हैं, क्विंचन के पास 3 किल्स मौजूद है। अभी भी कुछ प्लेयर्स नॉकआउट किए गए इनकी तरफ से, जिनका किल कंफर्म होते ही इनको मजीद किल्स मिल जाएंगे, एंड आई बिलीव यहाँ पर 10 किल्स इस फाइट में लेकर जाती हुई टीम 4AM नजर आने वाली है। कुर्जायो ऐसा आगे बढ़ते हैं, बट रियलाइज करते हैं कि उनको ओवर एग्रेसिव नहीं होना, उनको डिफरेंट साइड से डैमेज पड़ सकता है। T2 के हाइट पे मौजूद रहेगी, मोलोटॉव फेंकते हैं, लेकिन मोलोटॉव फॉल शॉट हाइट से इस वक्त के लिए जो T2 के संदेश किल कंफर्म करते हुए विद मिनी 14 इस मैच से बाहर करने के वैम्पायर स्पोर्ट्स को 9 किल्स मिल जाते हैं। सारी सिचुएशन में टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स को टीम 4AM को और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेल दिखा रही है ये टीम इस मैच में। आई बिलीव सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चिकन डिनर निकालने की किसी टीम की, दैट इज टीम 4AM फॉर नाउ, बिकॉज़ 9 किल्स निकालने के साथ साथ ये टीम 4AM का चिकन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पॉट पे भी मौजूद है। बाकी है T2 के जैन बेशक जी अच्छा स्पॉट भी मौजूद है। दूसरी तरफ सर्कल के शिफ्ट्स अभी तक के लिए 4AM को कैप्चर कर सकता है अगर सड़ गए तो, लेकिन उन लोग अभी जोन के तरफ जाएंगे। करीब है 4AM के पास किल नंबर्स में काफी अच्छी जो है वो यहाँ पर अभी तक हमें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ T2 के प्लेयर्स पुश करते हुए DRS के किलर वाइटी सामने 2 पर ले जाएंगे, एंड इसी के साथ टीम T2K अपना एक प्लेयर लूज कर जाती है। थॉट के 2 प्लेयर्स T2 के बाद अच्छा पोजीशन होल्ड करने का चांस है, लेकिन T2 ने ना होल्ड नहीं किया। DRS के किलर वाइट की तरफ से या ऐसे टॉप लेकिन आउटसाइड प्ले जोन से नॉक होते हुए टीम स्टारवुड स्पोर्ट्स भी अपने आखिरी जो है वो सांसें लेती हुई इस मैच के अंदर नजर आ रही है, एंड वुड सी के कितना दूर तक टॉप प्ले जोन से फिनिश होते हुए वो सर्वाइव करते हैं। एनवी ऑर्डर INF फेडरल के सामने फेडरल ने उसको स्पॉट किया। into the circle INF फेडरल का बेहतरीन नेड और ये नॉक टॉस्की की तरफ से कर दी जाएगी। टीम नोवा 2 प्लेयर्स नोवा या दिक्कतों में दिखते हुए, क्योंकि टीम नोवा के सिर्फ बचे हैं 3 प्लेयर होते हैं जो कि एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 4AM का स्पॉट इनको के ऊपर पुश करता हुआ 4 प्लेयर सामने मौजूद है, एक ही कंपाउंड के अंदर 3 प्लेयर मौजूद हैं। वैटाली की तरफ से गॉडजायो को टेक डाउन किया जा चुका है। 4AM WXB नॉक हो चुके हैं, किंगचन सामने मौजूद है। वैटाली देखते हैं अभी डिंगचैंग क्या कर सकते हैं प्लेयर के ऊपर, लेकिन इट डजंट नो कि वैटाली इतना क्लोज आ चुके हैं। इनको के प्लेयर्स यहाँ 4AM गेम से बाहर जाते हुए किल स्ट्री को फुल स्टॉप लगा दिया जा चुका है इनको की तरफ से, एंड वी हैव स्टिल 4 ब्राजीलियन स्क्वाड्स इनटू द फाइनल सर्कल्स। स्टेज 6 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, छठे सर्कल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, एंड 4 पैराबॉय का एक बेहतरीन नॉक आते हुए हमें इस फाइनल सर्कल्स के अंदर अभी तक के लिए एक अच्छी पोजीशन के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्काई की तरफ से एक लीप ऑफ फेथ पैराबॉय अपना पोजीशन बनाते हुए की कोशिश कर रहे हैं। फेडरल ऑन द अदर साइड नॉक हो चुके हैं, उनके ऊपर स्मोक्स भी किए जा चुके हैं, लेकिन INF से 2-4 बहुत ज्यादा ही ओपन में, शायद उनके पास उतना स्मोक रहना चाहिए, नहीं तो उनकी तो गेम बजने के चांसेस है उधर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काफी ज्यादा डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं। INF की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है क्योंकि उन लोग ओपन में फंस गए। नजर आएगी हालात जी हाँ, INF के प्लेयर नॉकडाउन है, उनको रिवाइव देना जल्दी से पड़ेगा, लेकिन फेडरल को कंफर्म करते हुए पैराबॉय उनका किल कंफर्म किया जाता है। लेकिन इस मैच में फाइनली नोवा को हम सरवाइव करता हुआ तो देख रहे हैं, बट लास्ट मैच की तरह उनके 2 ही प्लेयर जिंदा हैं इस सारी सिचुएशन में, और इस वक्त जोन का भी एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं। जोन तो मुझे लगता है नोवा के साइड ही जाएगा, अभी के देखते हैं उनके भी जिंदा रहेंगे। काफी स्टेज 6 है जोन का के लिए, लेकिन A7 को देखें आप, मेरा पैराबॉय यहां पे ओपन में पोजीशन बनाते हुए
हमने नाम जरूर लिया INF INF के पास बहुत ही ओपन है। INF किसी भी वक्त फिनिश हो सकती है। उनके पास मौजूद है, ऐसा ज़्यादा मौका भी नहीं मिला उनको फाइट लेने का, लेकिन ये चीज़ बेहतर है कि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेकर गए लास्ट मैच में। इस मैच में इनको ब्राज़ीलियन स्क्वाड स्ट्रॉन्ग साइड को स्ट्रॉन्ग रखना, इन लोग ने उनके एलिमिनेशन से 4 सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस होल्ड कर रहे हैं वो और कोई नहीं INF। जैसे कोई देखेगा किल्स भी इनके ऊपर कंफर्म हो सकते हैं। इसी इस नाम में DRS के आखिरी प्लेयर उनको भी इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन पैरा बॉय कंफर्म करना चाहते हैं जिमी, यहाँ रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। व्हीकल लेकर आगे मूव किया जाएगा उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टैग भी उनको पड़ रहा है, डिफरेंट साइड को डैमेज पड़ता हुआ जिमी के लिए। ये जो एक राइट टीम की इनकी लास्ट राइड बनकर जाती है, जाना नहीं चाहिए था, पर अभी उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, एलिमिनेट हो जाते हैं और यहाँ इस मैच से लॉबी की तरफ जाती थी। पैराबॉय भी जोन से एलिमिनेट हो चुके कुछ कर ही नहीं सकती थी बिकॉज मैन एडवांटेज भी इनके पास मौजूद नहीं था और जोन भी इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन एसटी के स्क्वाड के ऊपर पुश किया जाएगा स्कोर्स की तरफ से। इनको यहाँ 2 प्लेयर्स पुश करते हुए नजर आते हैं और एक किल कंफर्म इनकी तरफ से किया जाता है एसटी के सोलो। मुझे तो लगता है इनको ये चिकन निकालेगा टीम इनको ये वाला मैच। इनको कुछ सर्कल में एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन इन्फ्लुएंस कैमन से बचना लेट्स सी किस तरह से पॉसिबल रहता है इनके लिए। लेकिन इन्फ्लुएंस कैमन जिस एरिया पर मूव कर रही है दैट इज द टेरिटरी ऑफ टीम A7 और A7 यहाँ डिनाई करती हुई नजर आएगी। ब्रू भी थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है, 2 साइड से अटैक्स खाती हुई। इन्फ्लुएंस कैमन आई बिलीव इस सिचुएशन को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कुछ सेकंड्स पहले जो टीम सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी एसन, वही टीम इस मैच से लॉबी की तरफ जा रही है। इनको फॉर द विन गाइस, इनको फॉर द विन। इनको वाइटाली 5 किल निकालते हुए सोलो 5 किल्स। लेकिन वी परिणाम यूनाइटेड टाइगर को यहां पर नॉक कर दिया जा चुका है। अल्फा 7 स्ट्रांग होल्ड के अंदर चारों प्लेयर्स के साथ सरवाइव करती हुई इनको का सामना करना पड़ेगा। अल्फा 7 इनको के लिए एक थ्रेड बन सकता है, वो काफी बेहतरीन देखते हैं अभी तक के लिए। लेकिन अल्फा 7 को अपना रास्ता बनाना है जोन तक। तरह से खेला गया वो भी इनको के पास और ब्रू के पास जोन है पहले से। 3 एलिमिनेशंस के साथ अभी तक करी अपनी टीम के अंदर। इनको देखते हैं अपना जोन डिफेंड कर पाती है कि नहीं। नाउ इट्स टाइम अल्फा 7 अपने इस सेफ स्पेस को छोड़कर निकले। रीवो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नॉक हो सकते हैं प्ले जोन से, बिल्कुल लो एचपी थे। और दूसरी तरफ अल्फा 7 जो है वो सर्कल के अंदर जगह बनाने में जो है वो अभी तक के लिए कामयाब होती हुई आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है। लेकिन इनको के प्लेयर्स रीवो के सामने अल्फा 7 के करियो के ऊपर स्प्रे करते हुए, दूसरी तरफ परिणाम यूनाइटेड के स्काई ओनली कोशिश कर रहे हैं कि वो अल्फा 7 को बिल्कुल अलाउ ना करें कि वो सर्कल के अंदर जगह बनाए। लेकिन एक स्लाइट जो है वो चेंज ऑफ प्लान्स के साथ नजर आई परिणाम टीम अल्फा 7। लेकिन दूसरी तरफ बेहतरीन नॉक इनको के स्क्वॉश की तरफ से हेड शॉट्स लैंड किए गए उनकी तरफ से ऑन द ऑपोजिशन। परिणाम यूनाइटेड एक और नॉक यहाँ पर डील करती हुई है एंड दिस टाइम अराउंड आई बिलीव परिणाम यूनाइटेड के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अल्फा 7 स्ट्रेट पुशन करती हुई सामने इन हे बेल्स के ऊपर जो कि सेंटर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर टीम परिणाम यूनाइटेड के प्लेयर्स को मुश्किलात से 2-4 किया जाएगा, लेकिन स्काई ओनली ऑन द अदर साइड एलिमिनेट इनको एंड टीम अल्फा 7 मिलकर खात्मा करती हुई टीम परिणाम यूनाइटेड का एंड थर्ड स्पॉट पे उनको इस मैच एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। नाउ द सिचुएशन इज टफ, मिथिक नॉक हो चुके हैं, इट्स अ 3v3 सिचुएशन। व्हीकल्स डैमेज कर दिए जा चुके हैं इनको की तरफ से। अल्फा 7 के प्लेयर्स एक साइड के ऊपर अभी तक के लिए जो है वो यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। कारियो थोड़ा सा स्प्लिट अप है, माफियोसो एंड रिवो मौजूद है मिथिक के ऊपर। अब जाके रिवाइव देना मुश्किल हो चुका है क्योंकि व्हीकल पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन इनको ऑन द अदर साइड मिथिक की पोजीशन के ऊपर अगर स्क्वाश चले जाते हैं, दैट्स द पॉइंट जहां से वो और ज़्यादा प्रेशर जो है वो दे पाएंगे, डाल पाएंगे टीम अल्फा 7 के प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन दोस्तों स्टेज 9 आ चुका है, फाइनल सर्कल था वो भी क्लोज हो चुका है और आखिरी 2 मिनट है, उसके बाद ब्लू जोन क्लोज इन होना शुरू हो जाएगा और उससे पहले ही टीम अल्फा 7 और इनको को इस फाइट को कंक्लूड करना पड़ेगा। डिस्टेंसेस हैं थोड़े से इनको के और अल्फा 7 के प्लेयर्स के फ्रॉम द ब्लू जोन, लेकिन ये ब्लू जोन आखिरी ब्लू जोन है और फिनिश होता हुआ हमें नजर आएगा इस अगले 2 मिनट के बाद। कारियो मूव करते हैं, गलती की जा रही है, गलती का हमें आजाब भुगत सकते थे लेकिन स्क्वॉश बाल पुशते हुए नजर आए। लेकिन कारियो पुश करते हुए सामने
नॉक कर दिया जाएगा। इनको अपने चिकन डिनर को देख रही है। 2v3 सिचुएशन बन चुकी है। बेकर सामने मौजूद है। स्क्वॉश की पोजीशन तो रिवील है, लेकिन बाकी दो प्लेयर्स की पोजीशन एग्जैक्टली रिवील नहीं रहने वाली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाइटली सामने आते हुए रीवो और माफियोसो दोनों प्लेयर सामने मौजूद हैं। कारियो पोजीशन देते हुए स्क्वॉश की, लेकिन ये चीज अल्फा 7 को मुश्किल से 2-4 करेगी। सामना करना है उन्हें स्क्वॉश की तरफ से। माफियोसो को डाउन किया जा चुका है। रीवो इज द फाइनल वन। रीवो के ऊपर यहाँ पर बुलेट्स लैंड करनी पड़ेगी एंड आई बिलीव प्ले जोन से ही डैमेज लेते हुए एलिमिनेट होते हुए नजर आए। एंड देयर यू गो, इनको गेमिंग कर जाती हुई सेकंड मैच का चिकन डिनर। अल्फा 7 नहीं, कोई बात नहीं, ये और ब्राजीलियन टीम जीत जाएगी। बहुत क्लोज कॉल थी अलादीन हमारी इस मैच के अंदर, जो हमारी प्रेडिक्शंस थी उसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एक अच्छे मैच के बाद इनको गेमिंग अपना चिकन डिनर लेकर जाती हुई सेकंड मैच के अंदर। बिल्कुल जी, काफ़ी करीब आ जाती है टीम A7 चिकन डिनर के, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट मोमेंट्स तक भी लग रहा था कि चिकन A7 ही लेकर जाएगी, बट जस्ट यहाँ से कह लें कि थ्रो किया जाता है चिकन डिनर। छोटी छोटी सी गलतियाँ वहाँ पर आती ज़रूर हैं A7 की तरफ से, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे ज़रूर। लेकिन पहले बात करते हैं हम हमारे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की, इनको कि